Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9. Students, today we are going to study lesson number 9, that is, all is not lost. मतलब सब कुछ नहीं खोया. It means that always there is hope. Always there is a chance to win. One can even win or lost battle. Or defeated battle at the wake of disappointment, at the wake of इंतहाई मायूसी के आलम में भी there is light of hope remains always. Darkness brings light. This topic suggests a unique meaning. This topic suggests a unique idea, and the idea is that one must not be disappointed. One must not be lose hope. He should believe in God. He should trust in God. And he should always trust in Allah. क्योंकि अल्लाह पर यकीन ही सब कुछ है. God says disappointment is a sin. मायूसी गुनाह है. So being a Muslim, we should not be disappointed. We should not think everything a lost battle. We should always be ready to do something. Students, I am your teacher, Abrar Hussain, and today we are going to study All is Not Lost. Students, I hope that after studying the lesson, you will know some new English words, and along with this, you will understand structure of tense that have been used in this lesson. I have found that past and definite tense have been used in this lesson, and you will know that how do we use past and definite tense and how its structure is made. And after that, students, this lesson is about nursing profession, and you will know the value of nursing profession and dutifulness. Being a responsible person, being a mature person, being a person who has responsibilities, you will know the sense of duty, devotion, and sense of responsibility. These are good characteristics that every mature person, every sensible, educated, and every a person with objective should have. In this picture, in introduction of the lesson, I have included two pictures according to the lesson, according to the topic of the lesson. You are watching two pictures in this screenshot. In one picture, two nurses are caring for the patient, and in second picture, you are watching a nurse operating the machine. Students, nursing is not an easy job. The nurses have to care for the patient. They have to attach with the patient in order to maintain his health. They have to care for the medicine, care for the rest, and care for the necessities of the patient. And along with this, as like an engineer, like a doctor, they have to operate different machines in order to maintain health and recovery for the patient, recovery of the patient. So just move towards introduction. Why I have to include these pictures, and why this lesson is very much important for all of you. In introduction, I have suggested that this lesson is about the responsibilities of healthcare professionals. You know, nurses play a key role for the recovery of patients suffering from various diseases. Medical professionals, especially nurses, cares a lot for the patients. The devotion and the responsibility of various diseases, nurses
assures health and recovery of victims of various diseases around the globe. In present scenario, the importance of the nurses increases a lot because they are one confronting the pandemic of COVID-19 at forefront. They are fighting as soldiers to combat the pandemic of the coronavirus. The hard work and devotion make the nurses special people around the globe because they care for such patients too, whom their relatives even don't like to touch. Students, इस लेसन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि नर्सेस की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हस्पतालों में आप देखें मुख्तलिफ बीमारियों के लड़ते हुए मरीज़ों की देखभाल करते हुए ये नर्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं और इनका मरीज़ों की सेहतयाबी में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। मेडिकल प्रोफेशनल्स और ख़ास तौर पे नर्सें मरीज़ों की ही देखभाल करती हैं और उनकी फर्शनासी और उनकी ज़िम्मेदारी ही बहुत सी बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की सेहत की ज़मानत है। मौजूदा हालात में इनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो सामने आकर कोविड-19 जैसी वबा से, आलमी वबा से वो लड़ रही हैं और वो सिपाहियों की तरह काम कर रही हैं और डॉक्टर्स के शाना बशाना काम कर रही हैं। इनका हार्ड वर्क, इनकी मेहनत और इनकी फ़र्ज़शनासी इनको ख़ास लोगों में शुमार करती है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो उन मरीज़ों की भी देखभाल करती हैं जिनको उनके पेरेंट, उनके रिलेटिव्स, उनके करीबी हाथ तक नहीं लगाते। Students, now we will move towards the text of the lesson. I will start reading and translation. I will translate the lesson for you. Text of the lesson. It was the beginning of my profession as nurse. बतौर नर्स ये मेरे शोबे की इब्तदा थी। I worked in the intensive care unit ICU of neurology ward. मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, बतौर एक नौजवान खातून के, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं एक नौजवान नर्स के, मैं पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज, मैं मरीजों को सेहतयाब होते देख कर बहुत पुरजोश हो जाया करती थी फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, जो तबाहकुन हादसात का शिकार होते थे। येट आई वॉज पेन टू नर्स दोज, लेकिन मुझे उन मरीजों की देखभाल करते हुए तकलीफ भी होती थी हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, जो बहुत ज़्यादा असाबी बीमारी का शिकार होते थे। डियर स्टूडेंट्स, One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, एक दिन एक नौजवान बस हादसे की शिकार खातून के बिस्तर के साथ खड़े होते हुए देखकर I wondered, मैं हैरान रह गई, if she could make the same recovery as others, कि क्या ये मरीज भी दूसरे मरीजों की तरह ठीक हो जाएगी। Hira had received severe head and spinal injuries. हीरा के सर और उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा सख्त चोटें आई थी। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडी बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ सड़क पर गुजर रही थी तो बस से टकरा गई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड, मैंने उसके बेजान हाथों को अपने हाथों में लिया, उसके बाजुओं को, बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और मैंने उस पर बहुत सारा की वर्जिशें आजमाई, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने इसके लिए उसकी बहन को भी बुलाया। एंड टॉक टू हर, और उसे कहा कि इससे बात करो। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, कि शायद इसके मुर्दा आसाब को, इसके किसी करीबी अजीज़ की आवाज़ उसमें जान डाल सके। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी। लुक स्टूडेंट्स, एज अ नर्स she is showing her devotion, her responsibility. She, as a human being, she cares for the recovery of the patient. She cares, she understands the
difficulties and problems, health problems of the patient. And she wanted, as a nurse, she wanted to maintain the health of the nurse. And she knew the pain to which the patient was passing. Students, her eyes showed certain helplessness. उस पेशेंट के मतलब बात करती है कि उस पेशेंट की आंखों में अजीब सी बेचारगी थी, बेबसी थी. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज. मैं उसकी आंखों में, उस आंखों के ज़रिए से उसके जहन को पढ़ सकती थी. परहैप्स शी वांटेड टू से, गालिबन वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. अ फेलो नर्स केम नियर मी. मेरी एक साथी नर्स मेरे पास आई एंड आस्क्ड, और पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग. राहीला तुम क्या कर रही हो. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. तुम एक हारी हुई जंग जीतने की कोशिश कर रही हो. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ colleague मेकिंग अ होपलेस कमेंट. मैं अपनी साथी से इस तरह से मायूसी की बात करते हुए उसको सुनकर हैरान रह गई. Then I replied, तब मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process her sister's voice. मैं इसके बहन की आवाज़ से इसके ब्रेन को, इसके दिमाग को काम करने के काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. Also I am doing my best. इसके अलावा मैं ये भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ to ensure कि इस बात को यकीनी बनाऊँ that her arms and legs get proper exercise, कि इसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मिले. This might help her walk like a normal man. इससे like a normal person. इससे शायद ये एक नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल शख्स की तरह चलने के काबिल हो जाए. You see, students, how much worried she was, how much caring she was. Now, you will see the behavior of other nurse. I will explain it for you. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद था वो अंदर आ गया. He gave me ironic smile and said, वो मेरी तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराया और कहा, If you spend most of your duty hours on one patient, अगर तुम अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ एक ही मरीज़ पर सर्व करोगी, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. तो हमें दूसरे मरीजों को देखने के लिए और ज़्यादा नर्सेज भर्ती करना पड़ेंगी. प्लीज़ गो, राय मेहरबानी जाएं. एंड सी अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को भी देखें. वी डोंट हैव मच होप फॉर हर. हमें इसके बचने की कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन. मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये कभी दोबारा अपने पाँव पर चल सके. स्टूडेंट्स, सी, एक तरफ तो वो नर्स है जो मरीज़ की, उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और उसको वो बचाना चाहती है और उसके लिए हर एफर्ट वो करने की कोशिश कर रही है, उसको वर्जिश करवा रही है, उसकी बहन को बुलाकर उससे बातें करवा रही है. लेकिन एक तरफ दूसरी नर्स, हर एक का अपना एटीट्यूड है. वो, उनको भी दूसरे मरीज़ों की फ़िक्र है कि उनको भी प्रॉपर अटेंशन मिले. लेकिन इस मरीज़ को, जिसकी जो राहीला जिसकी बचाने की जिसको कोशिश कर रही है, उसको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है. हर जगह पे हर शख्स ठीक है, वो सारे मरीज़ों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वही समझती है, राहीला समझती है कि इस पेशेंट को अटेंशन की, केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इसके लिए हर एफर्ट करती है. अभी एक नर्स उसके पास आई और उसने उसको रोका कि आप सिर्फ एक ही पेशेंट पे काम कर रही हो. दो डॉक्टर्स ने भी आके यही बात की. तो अब इसका असर उस पर क्या होता है, लेट्स सी. आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेंट डिड नॉट सीम राइट. मरीज को बगैर देखभाल के छोड़ देने की नसीहत मुझे अच्छी नहीं लगी थी. आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज. मैं जानती थी कि ये सिर्फ बहुत सी सख्त असाबी दबाव की बीमारी में मुब्तला थी. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस. लेकिन इसको भी एक मौका देने की ज़रूरत थी. एन इनर वॉइस समवेयर विदन मी स्पोक.
मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, कि इसके लिए एक कोशिश और करो। यानी कि वो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इस मरीज़ को बचाने की कोशिश करो। गो कि वो बहुत ज़्यादा उसको चोटें आई थी, बहुत ज़्यादा वो पेशेंट बीमार थी, असाबी बीमारी का शिकार थी, उसके बचने की भी उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इसको मौका ज़रूर देना चाहिए कि ये अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। सो नेक्स्ट लेट्स सी, आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं अपनी सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उससे कहा कि मैं इस मरीज़ की मदद करना चाहती हूँ और उसके ज़्यादा करीब रहकर काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ बहुत ही हैरानगी से देखा एंड रिमार्क्ड, और कहा दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि मुझे डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से ये हुक्म मिला है कि इस मरीज़ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूं। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स का ख्याल है, दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये मरीज़ अब लाइलाज हो चुका है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और ये इसके बिस्तर की दूसरे मरीजों को भी ज़रूरत है, वो खाली होना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हियर दिस, उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ या बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। लुक स्टूडेंट्स, द पेशेंट्स फैमिली also requested me to help them fight the case. उस मरीज़ के ख़ानदान के लोगों ने भी उससे दरख्वास्त की कि इस मरीज़ के लिए वो उसकी मदद करे। Something needed to be done. अब कुछ करने की ज़रूरत थी। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपने मरीज़ को अपनी सेहत के लिए अकेले ही लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। I made up my mind to risk my career. मैंने अपनी मुलाजमत को भी दांव पर लगाने का ज़हन बना लिया and help the patient, और मरीज़ की मदद करने का फ़ैसला किया। I requested the senior doctors, मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स से दरख्वास्त की to allow me to attend to this young helpless patient, कि वो उसको इस मरीज़ को, नौजवान मरीज़ा को देखने की, अटेंड करने की इजाज़त दे दें। Somehow, किसी तरह से भी, I was able to make the patient stay in the ICU. किसी तरह से भी मैं मरीज़ को ICU में रखने में कामयाब हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, I continue to work on Hira. मैंने हिरा पर मेहनत जारी रखी, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन उसकी सेहत कुछ भी बेहतर नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर, मैं भी खुद को उस मरीज़ा की तरह बेबस महसूस कर रही थी। टू सी हर लाई ऑन बेड, जिस तरह वो बेबसी से बिस्तर पर लेटी होती थी। इन मिजरेबल स्टेट, बहुत ही मिजरेबल हालत में, बहुत ही रहम दिलाना हालत में। Could I be able to justify the stance before the senior doctors? अब वो नर्स खुद से सोचती है, सवाल करती है अपने आप से कि क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने मैं इस बात का कोई जवाब पेश कर सकूंगी अगर मेरी मरीज़ा सेहतयाब नहीं होती तो। आई डिड नॉट लूज होप, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद माई पेशेंट, मैंने अपनी मरीज़ा पर मेहनत जारी रखी। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्मॉल रिकवरी, मैं उसको थोड़ी थोड़ी सेहत याबी की तरफ आते देखकर देख थोड़ा थोड़ा को सेहत याबी की तरफ आते देख सकती थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत ही थ्रिल्ड यानी पुरजोश हो गई ये देखकर, लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी सी उंगली को थोड़ी सी हरकत दी थी। यानी मरीज़ा ने एक दिन अपनी छोटी सी लिटिल फिंगर को हरकत दी, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। यानी उसको उम्मीद हो चली थी कि ये पेशेंट अब ठीक होने के करीब है। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 माह के लिए तरबीती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स,
میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں دینے کی ہر ممکن کوشش کی. I returned after 3 months to see my patient's bed taken by another. 3 مہینے کے بعد میں اپنی مریضہ کو دیکھنے اس بستر کے پاس آئی جہاں پر اب ایک اور مریض لیٹا تھا. My feet froze to the ground. میرے پاؤں زمین کے ساتھ چپک گئے. I did not have the courage to ask. اور مجھ سے پوچھنے کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. What happened? کہ کیا ہوا تھا. As I stood near the bed, جب میں اس بستر کے پاس کھڑی تھی, with several questions popping in my mind, بہت سے سوالوں کے ساتھ جو میرے ذہن میں آ رہے تھے, I felt a gentle pat on my shoulder. میں نے اپنے کندھے پر ایک تھپکی محسوس کی. I turned around. میں پیچھے مڑی to see a young woman. میں نے ایک نوجوان خاتون کو دیکھا. Smiling at me. جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. Are you looking for your patient? کیا آپ اپنی مریضہ کو دیکھ رہی ہیں؟ She said. اس نے پوچھا. And gave me a big hug. اور مجھے زور سے گلے لگا لیا. Thank you for everything you did. Thank you for everything you did. آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے شکریہ. I know. میں جانتی ہوں. You did not allow them to me lead a crippled life. To lead me a crippled life. میں جانتی ہوں کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ میں معذوروں کی سی زندگی گزاروں. I stood still. میں بے حس و حرکت کھڑی تھی. Until her family came. حتیٰ کہ اس کے خاندان کے لوگ آئے. Around the big smiles on their faces. میرے ارد گرد اس کی خاندان کے لوگ آئے اور ان کے چہروں پر خوشی سے مسکراہٹ تھی. Thanks to Allah. اللہ کا شکر ہے. She was my patient. وہ میری مریضہ تھی. Standing and walking on her feet. on her own feet. جو خود سے اپنے پاؤں پر کھڑی تھی. I could not recognize her with the machinery and tubes around her body. میں اس کو مشینوں کے بغیر, جو اس کے ارد گرد ٹیوبز اور مشینیں لگی ہوئی تھیں, اس کے بغیر ان کو پہچان نہیں سکی تھی. Look students, کیسے اس نرس نے ایک مریض پر محنت کی, اس نے ہمت نہیں ہاری, اور وہ خاتون اس قابل ہو گئی کہ دوبارہ سے پھر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکے. تو اس طرح سے کسی وقت بھی انسان کو مایوسی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ بزرگ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کا بھی یہ فرمان ہے, بات اصل چیز ہے, وہ بات یہ ہے کہ جو اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. یعنی جو انسان اللہ پر ٹرسٹ کر کے اپنے محنت نہیں چھوڑتا تو اللہ بھی اس کے لیے راستے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. بچوں, آپ نے دیکھا کہ کیسے نرس نے اس مریض پر محنت کو ختم نہیں کیا, اینڈ نہیں کیا. دوسرے اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. اپنی جاب کو, اپنی ملازمت کو, اپنے کیریئر کو اس نے دو پر لگا دیا, لیکن اس مریض کے لیے اس نے کوششیں جو تھیں, جو فرض تھا اس کا, اس سے اس نے منہ نہیں موڑا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا. اس مریضہ کو ایک نئی زندگی مل گئی. Now look, she walked on crutches. اب وہ اور لڑکی یعنی بیساکھیوں پر چلتی تھی. which she would leave in a few months. جن کو وہ چند مہینوں میں چھوڑ دے گی. I was so glad. میں بہت زیادہ خوش تھی. that I had done those exercises on her to keep her limbs in motion. کہ میں نے اس کے جسم پر وہ ایکسرسائزز کی تھی, وہ ورزشیں کی تھی جس سے ان کے اعضاء حرکت میں رہے تھے. I was glad. میں خوش تھی. that my efforts bore fruit. کہ میری محنت رنگ لے آئی. But most of all, لیکن سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی. I was happy. میں خوش تھی. that Allah Almighty had helped me win a lost battle. کہ مجھے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں اللہ نے میری مدد کی تھی. سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی. تو بچوں, جب انسان محنت کرتا ہے, امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے. آپ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام میں, اپنی اسٹڈی میں, ہر اچھے کام میں, جب بھی آپ
दिलो जान से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह आपके लिए भी रास्ते पैदा करेगा इंशाल्लाह. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. अब वो नर्स बता रही हैं कि वो मरीज़ा और उसके ख़ानदान के लोग मेरे साथ एक बहुत अच्छे दोस्ती के रिश्ते में बन चुके थे. आई वॉज हम्बल्ड, मैं बहुत ज़्यादा आजिज़ थी, बहुत ज़्यादा उसकी उसकी ताज़ीम करती थी. बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी, कि जो वो उसके ख़ानदान के लोग और वो मेरी तरफ मेरे लिए यानी मेरे जितने वो शुक्रगुज़ार थे, मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजिज़ी महसूस करती थी. आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, और इस वजह से मुझे अपने अंदर एक नई ताकत भी महसूस होती थी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह. आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे अपनी नर्स होने पर फख्र था. तो डियर स्टूडेंट्स, you have heard a story, you have read a story, it is very interesting. In the lesson is, there is always hope, there is not lost always, everything is not lost. Whenever a man think that there is no hope to win, there is no hope to live, always there is hope, always there is hope. And whenever you think that hope is lost and disappointment prevails you, you think yourself, then you think you are died, your efforts are died, you have lost. This is just one idea that can keep one strong, keep one lively, and keep one in a position to win. This There's just one idea. If one keep in mind that everything is not lost always, always there is hope. One must keep in mind that always there is hope. If he thinks he will not lost anything. Okay, students, today now you will have to answer the questions. You have studied the lesson, and I have translated the lesson for you in a very easy manner, and I hope you will be able to understand the questions and their answer. मैं आपको क्वेश्चंस समझा देता हूँ, आपने इनके जवाब लिखकर मुझे आपने टेक्स्ट करने हैं, मुझे आपने मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने हैं. क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ द नर्स. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नर्स की एम्बिशन क्या थी, ख्वाहिश क्या थी. मैं सिंपली एक लाइन में बताऊंगा, आपने क्वेश्चंस को आंसर्स को थोड़ा सा लंबा करना है. उसकी एम्बिशन ये थी कि शी वांटेड टू सेव द वर्ल्ड, और वो मरीजों को जल्द सेहत याब होते देखना चाहती थी. वो दुनिया को महफूज बनाना चाहती थी, बीमारियों से महफूज बनाना चाहती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल नर्स, शी वांटेड टू सेव द वर्ल्ड, शी वांटेड टू सेव द पेशेंट्स फ्रॉम द डिवास्टेटिंग डिजीजेस. तो तबाहकुन बीमारियों से लोगों को, मरीजों को बचाना चाहती थी. What was the source of excitement and pain for the nurse? You have studied in the first paragraph of the lesson. Okay, as a nurse, she feel excitement whenever she find any patient recover soon, and she feel pain a lot whenever see any patient stuck with acute disorder. यानी whenever, जब वो किसी मरीज को मुख्तलिफ सख्त बीमारी में मुब्तला देखती थी तो उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी. तो ये इसका आंसर बनता है. डिस्क्राइब द नेचर ऑफ हीरास इंजरीज. हीरा को इंजरीज किस तरह की लगी थी. उसको सर पे शदीद चोटें आई थी, उसको रीढ़ की हड्डी पे चोटें आई थी, और उसका न्यूरल सिस्टम सारा तबाह हो गया था. यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन in your own words. Okay, students, the lesson is too long. Next is number 4 is, what did Rahila's colleague ask her. Rahila की colleague ने first of all उसके क्या कहा था. What was her reaction to it. और उसको देखकर और उसका इस पर reaction क्या था, यानी जो राहिला कर रही थी उस नर्स का reaction क्या था उस पर.
या इसका रहीला का उस नर्स के कमेंट्स पे रिएक्शन क्या था, वो हैरान रह गई थी। ओके, नंबर 5, व्हाट डिड द सीनियर डॉक्टर गिव हर द नर्स एन आयरॉनिक स्माइल। उस पर क्यों आयरॉनिक स्माइल दी थी? वो इसलिए दी थी कि वो समझ रहा था कि ये पेशेंट, ये सॉरी नर्स भी कितनी मासूम है कि एक मरीज जो मरने के करीब है ये फिर उसको भी बचाना चाहती है। यानी वो उसकी सादगी पे या वो मुस्कुरा रहा था, या उसकी वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी थी, डिवोशन थी, उसको देख के वो मुस्कुरा रहा था। नंबर 6, व्हाट डिड द सीनियर डॉक्टर आस्क हिम। सीनियर डॉक्टर ने उसको क्या कहा था? सीनियर डॉक्टर ने उसको कहा था कि आप इस पेशेंट को छोड़ दें, बाकी पेशेंट्स को भी देखें। अगर एक पेशेंट पर ज़्यादा टाइम सर्व करेंगी तो उनको और ज़्यादा नर्सेज रिक्रूट करना पड़ेंगी। यू विल हैव टू राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द सिंपल एग्जैक्ट आंसर। Okay, students, question number 7, राहीला did not follow the advice of the doctor. राहीला को डॉक्टर्स की इन बातों से कोई असर नहीं पड़ा, उसने कोई असर नहीं लिया। उसने was it a thorough professional approach? क्या ये एक प्रोफेशनल अप्रोच थी, पेशा वराना अप्रोच थी? सपोर्ट योर आंसर विद लॉजिकल रीजंस। आपने इनके कोई मंतकी जवाब इनका देना है, वजूहात बयान करनी है कि उसने डॉक्टर को, रहीला ने डॉक्टर्स की बात की परवाह नहीं की थी, क्या उसको करनी चाहिए थी डॉक्टर की परवाह या नहीं करनी चाहिए थी? अगर उसने नहीं की थी तो उसकी क्या वजूहत थी? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाउ डिड नर्स मैनेज टू कीप हीरा इन ICU? यानी किसी तरह से भी वो उसको मैनेज करने के काबिल हो गई थी, डॉक्टर से बात की होगी, किसी तरह से भी वो उसने एफर्ट की, उसकी फैमिली ने एफर्ट की, तो उसने उसको ICU में रखा, डॉक्टर से बात की कि उसको पेशेंट को अटेंड करने दें, और वो उसको उम्मीद थी कि वो इस पेशेंट को सेहतयाब करने में कामयाब हो जाएगी। सेहतयाब तो अल्लाह ने करना था, लेकिन उसने एफर्ट करने की जो उसने की, और अल्लाह ने इसको शुक्र किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन शी केम बैक आफ्टर ट्रेनिंग, व्हाई वाज हर पेशेंट मिसिंग फ्रॉम बेड। जब वो ट्रेनिंग से नर्स वापस आई तो पेशेंट बेड पर नहीं था, तो वो कहाँ था? So in the last paragraph, you have seen where was the patient. The patient was walking on crutches, and the patient was just behind the nurse. और वो वहीं पर मौजूद था जो डिस्कशन होती है। You have learnt in the lesson, and read the paragraph again and try to answer the question. Number 10, what was the reaction of Hira after seeing her patient on crutches? जब crutches को देखा तो वो क्या हुआ था? हैरान रह गई थी। ये लास्ट में पैराग्राफ पढ़ के आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू डेवलप सम काइंड इमोशनल अटैचमेंट विद पेशेंट? क्या ये ठीक है कि नर्सिस का, डॉक्टर्स का, या किसी का भी मरीजों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो? आंसर इन द लाइट ऑफ ऑल इज नॉट लॉस। इस लेसन की रोशनी में आप इसका आंसर दें। I think emotional attachment is necessary for the recovery of the patient. If a doctor or nurse don't feel the problem, the pain of the patient, they will not be able to cure the patient. उनका इलाज बेहतर नहीं कर सकेंगे if they don't have emotional attachment with the patient. So answer the question in the comment, in my comments, according to my comments. Number 12, do such nurses exist in reality? क्या ऐसी नर्सेज आज के दौर में हैं? गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल। आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा बच्चे कि आप नर्सेज को हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, और आपके साथ जो अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं जस्ट उनको शेयर करें। तो बॉयज, today's lesson is complete, and now thanks. I will see you with the exercise of the lesson in next period, and for rest of the time, next I will see you next. So okay.